السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ سابق چیف الیکشن کمشنر ایس وائی قریشی نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو ویلن کے طور پر پیش کرنے کے لیے ہندو گروپوں کی جانب سے پیدا کردہ مفروضوں کو بے نقاب کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام خاندانی منصوبہ بندی کے نظریے کے خلاف نہیں ہے اور ہندوستان میں تمام طبقات کے مقابلے میں مسلمان ہی سب سے کم شادیاں کرتے ہیں۔ قریشی نے اپنی نئی کتاب دا پاپولیشن وتھ اسلام، فیملی پلاننگ اینڈ پالیٹکس ان انڈیا میں لکھا کہ مسلمانوں کی جانب سے آبادی ہندوؤں سے بڑھانے کے لیے کوئی منظم سازش نہیں کی گئی اور ان کی تعداد کبھی بھی ملک میں ہندوؤں کے قریب نہیں پہنچ سکتی۔ انہوں نے حقائق اور اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے اس پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی پر شدید تنقید کرتے ہوئے ان پر ریاست کے عوام کے ساتھ دغابازی اور توہین کا الزام لگایا، جنہوں نے بائیں بازو کے اقتدار کے بعد تبدیلی کے لیے ان پر اعتبار کیا تھا۔ بریگیڈیئر پریڈ گراؤنڈ پر بی جے پی کی ایک زبردست ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے اپنے مخالفین پر برہمی کا اظہار کیا جو ان پر اپنے مٹھی بھر تاجر دوستوں کی مدد کا الزام لگا رہے ہیں۔ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے اعلان کے بعد یہ ریاست میں مودی کی پہلی ریلی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ممتا بنرجی نے مغربی بنگال کے عوام کی امیدوں اور خوابوں کو چکناچور کر دیا۔ بی جے پی الزام لگا رہی ہے کہ ممتا بنرجی اپنے بھتیجے اور ڈائمنڈ باربر کے رکن پارلیمنٹ ابھیشیک کو آئندہ چیف منسٹر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سابق صدر راہل گاندھی اور ممتا بنرجی جیسے حریف قائدین پر تنقید کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ اپنے سادہ پس منظر کی سے وہ دوستی کی قدر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام 130 کروڑ ہندوستانی عوام میرے دوست ہیں، میں ان کے لیے کام کرتا ہوں۔ بالی ووڈ اداکار متھن چکرورتی وزیر اعظم نریندر مودی کی میگا ریلی سے قبل بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں بی جے پی میں شامل ہو گئے۔ پارٹی کے قومی جنرل سیکرٹری کیلاش وجے ورگیہ اور ریاستی صدر دلیپ گھوش نے متھن چکرورتی کا استقبال کیا۔ قومی ایوارڈ یافتہ اداکار نے گھوش کی جانب سے زعفرانی جماعت کا پرچم تھمائے جانے کے بعد کہا کہ وہ ہمیشہ محروموں کے لیے کام کرنا چاہتے تھے اور زعفرانی کیمپ نے انہیں اپنا خواب پورا کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک بنگالی ہونے پر انہیں فخر ہے۔ متھن نے کہا کہ میں ہمیشہ زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا لیکن کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس قدر بڑی ریلی کا حصہ بنوں گا جس سے دنیا کے سب سے مقبول لیڈر نریندر مودی خطاب کرنے والے ہیں۔ مغربی بنگال کے چیف منسٹر ممتا بنرجی نے وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف ایک تازہ وار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ریاست میں جہاں انتخابات ہونے والے ہیں ووٹرز کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ ترنمول لیڈر نے مودی اور امت شاہ پر تنقید کرتے ہوئے ان جبری وصولی کرنے والے قرار دیا اور کہا کہ تبدیلی بنگال میں نہیں بلکہ دہلی میں آئے گی۔ ممتا بنرجی نے ایل پی جی قیمتوں میں اضافے پر احتجاج کے لیے ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ کانگریس کے سینئر لیڈر دگ وجے سنگھ نے بی جے پی، آر ایس ایس اور اکھل بھارتیہ ہندو مہا سبھا کے بعض عناصر پر الزام عائد کیا کہ وہ نفرت کے سوداگر ہیں۔ تاہم بی جے پی نے پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی اور سنگھ پریوار کو دگ وجے سنگھ سے کسی صداقت نامے کی ضرورت نہیں ہے اور کہا کہ کانگریس لیڈر نے ایسے کئی بیانات دیے ہیں جن سے انتہا پسندوں کی حمایت ہوتی ہے۔ دگ وجے سنگھ نے اندور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی، آر ایس ایس اور ہندو مہا سبھا کے بعض عناصر فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی روایت اور اس کے کلچر کے مخالف ہیں۔ یہ لوگ نفرت کے سوداگر ہیں جو نفرت پھیلاتے ہوئے تشدد میں ملوث ہوتے ہیں۔ احمد آباد کی 23 سالہ عائشہ کی خودکشی کو لے کر نئے خلاصے ہو رہے ہیں۔ اسی دوران عائشہ خودکشی معاملے میں عائشہ کے والد اور ان کے وکیل نے عدالت میں وہ خط پیش کیا جسے خودکشی سے قبل عائشہ نے اپنے شوہر کے نام لکھا تھا۔ اس میں عائشہ نے اپنی پوری آپ بیتی درج کر رکھی ہے۔ گزشتہ ہفتے احمد آباد کے سابرمتی ریور فرنٹ سے سابرمتی ندی میں کود کر خودکشی کرنے والی عائشہ کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ملک بھر میں اس معاملے کو لے کر غم و غصہ ہے۔ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے عائشہ کے لیے انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں اور جسٹس فار عائشہ سے ٹرینڈ بھی چل رہا ہے۔ اس کے بعد پولیس حرکت میں آ گئی ہے۔ پولیس نے اس معاملے میں شکایت درج کرتے ہوئے راجستھان کے پالی سے عائشہ کے شوہر عارف خان کو گرفتار کر لیا تھا۔ اسی درمیان گزشتہ روز خودکشی معاملے میں جب عارف کی ریمانڈ ختم ہونے کے بعد اسے پیش کیا گیا تبھی عائشہ کے والد کے وکیل ظفر پٹھان نے عدالت میں عائشہ کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی تحریر پیش کی۔ یہ خط عائشہ نے عارف کو لکھا تھا جس میں اس نے لکھا تھا کہ تم نے اپنی کرتوتوں کو چھپانے کے لیے میرا نام آصف کے ساتھ جوڑ دیا جبکہ آصف میرا مخلص دوست اور بہترین بھائی ہے۔ خط میں عائشہ نے عارف کے ذریعے خود پر کیے گئے مظالم کے بارے میں بھی لکھا ہے۔ عائشہ نے لکھا ہے کہ تم نے مجھے 4 دن کے لیے کمرے میں بند کر دیا تھا، نہ کھانا دیا تھا نہ پانی دیا، اور میں اس وقت حمل سے تھی تب بھی تم نہیں آئے میری مدد کے لیے، اور جب آئے تب مجھے خوب مارا پیٹا تھا جس کی وجہ سے میرا ہونے والا بچہ مر گیا اور اب میں اس کے پاس جا رہی ہوں۔ ملک کے مختلف ریاستوں سے گرفتار کیے گئے 127 افراد کو پولیس نے 20 سال پہلے قومی مفاد عامہ کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کیا تھا جسے سورت کی چیف جوڈیشل کورٹ نے باعزت بری کر دیا ہے۔ ملک کا قانون عوام کے حقوق اور اس کے تحفظ کے لیے بنا ہے لیکن ملک کے نظام سے جڑے افسران سے کبھی ایسی غفلت ہو جاتی ہے جو خاندانوں کو اجاڑ دیتی ہے۔
जिंदगियां बर्बाद कर देती है। या तो वो जिंदगी भर इंसाफ के इंतजार में जेल में सड़ जाते हैं, या जब इन्हें इंसाफ मिलता है तो ऐसे अफराद या इनके अहले खाना के पास कुछ भी नहीं बचता। इंसाफ की चक्की में पिसकर जेल की सलाखों से 20 साल बाद बाहर आने वाले 127 अफराद की कहानी 2001 में शुरू हुई थी। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से गिरफ्तार किए गए 127 अफराद को पुलिस ने 20 साल पहले कौमी मफाद आमा के खिलाफ सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था, जिसे सूरत की चीफ जुडिशल कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। इन लोगों को मुल्क के अमन व सलामती में रुख न डालने और इससे जुड़े इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार किया गया था। ये अफराद अब कोर्ट की जानिब से बाइज्जत बरी कर दिए गए हैं, लेकिन बेकसूर साबित होने वाले इन अफराद की जिंदगी के तकरीबन 20 साल बर्बाद हो चुके हैं। मरकजी वजारत सेहत ने आज कहा कि 6 रियासतों पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, केरला और महाराष्ट्र में एक दिन में ही कोविड-19 केसेस की तादाद में काबिल लिहाज इजाफा हुआ है, जबकि पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में सूरत हाल तशवीशनाक हो गई है। केरला और महाराष्ट्र में भी मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 18,711 नए केसेस की इत्तला मिली है। महाराष्ट्र में भी मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने चेन्नई में रोड शो के साथ बीजेपी के उम्मीदवार पी राधा कृष्णन की इंतखाबी मुहिम का आगाज किया, जो कि हल्के लोकसभा कन्याकुमारी से मुकाबला कर रहे हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने क़ब्ल यहाँ के कायदीन के साथ बातचीत की और यहाँ की एक हनुमान मंदिर में पूजा भी की। उन्होंने घर घर इंतखाबी मुहिम के तहत विजय संकल्प महासंपर्क अभियान का आगाज किया। भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु असेंबली के इंतखाबात में मुकाबला कर रही है। पार्टी की जानिब से हल्के लोकसभा कन्याकुमारी से भी उम्मीदवार को खड़े किया गया है। म्यांमार में मुजाहिरीन ने फौजी कार्रवाइयों के बावजूद सड़कों पर निकलकर फिर एहतजाज किया है, जबकि गिरफ्तारियों का सिलसिला भी हुनूस जारी है। हजारों अफराद ने फौज के इख्तिदार पर कब्जे के खिलाफ मुजाहरा किया है। यांगून में कल सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से सियासी कारकुनों की गिरफ्तारी के दौरान नजरबंद रहनुमा आंग सान सूची के पार्टी का एक ओहदेदार हलाक हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 1 फरवरी के बाद से मुल्क में कम से कम 54 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 1700 गिरफ्तारियां की गई है। इसी दौरान फौजी बगावत के खिलाफ एहतजाज के दौरान पुलिस ने मुजाहिरीन पर फायरिंग और आंसू गैस के शेलिंग बरसाए, जबकि गिरफ्तारियों का सिलसिला अभी भी जारी है। दूसरी तरफ मुजाहिरों के दौरान गिरफ्तार करदा NLD पार्टी के एक रुकन खन मांग लत की यांगून में तदफीन अमल में आई। फौज ने इस मुस्लिम लीडर को गिरफ्तार कर लिया था, बाद अज़ां इसे मुर्दा करार दिया। पोप फ्रांसिस ने दौरे इराक के दूसरे दिन मौसल शहर का दौरा किया। इस मौके पर पोप ने चर्च में मौसल की जंग के मुतासरीन के लिए दुआ की। पोप ने सफेद कबूतर भी फिजा में छोड़ा, जो अमन की अलामत है। उन्होंने मौसल में हलाक शदगान के लिए यादगारी तनसीब का इफ्तिताह किया। पोप ने बावर कराया कि उम्मीद मौत से ज्यादा ताकतवर है और अमन जंग से ज्यादा कुव्वत रखता है। लोकसभा से सरपंच तक के तमाम इंतखाबात में उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी अखराजात की हद मुकर्रर है, लेकिन ग्रेजुएट MLC नशिस्तों के उम्मीदवारों को मुकम्मल आज़ादी दे दी गई है और इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों के लिए अखराजात की कोई हद मुकर्रर नहीं की है। तेलंगाना रियासत की 2 MLC नशिस्तों की इंतखाबी मुहिम उरूज पर है और दोनों हल्क़ेजात में राय दहिंदों की तादाद फीकस 5 लाख से ज़्यादा है। बावजूद इसके इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अखराजात पर कोई रोक नहीं लगाई, जिसके नतीजे में दोनों हल्क़ेजात में उम्मीदवारों की जानिब से करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। आम इंतखाबात की तरह दौलत और शराब की तकसीम आम हो चुकी है और इलेक्शन कमीशन इन सरगर्मियों पर रोक लगाने से इसलिए भी कासिर है क्योंकि इंतखाबी क़वायद में अखराजात की कोई हद मुकर्रर नहीं की गई। तेलंगाना के हसास इलाका भैंसा शहर में फ़िरक़ेवाराना तशद्दुद फूट पड़ा है, जिसके बाद मोहल्ले जुल्फ़िकार में बड़े पैमाने पर संगवारी का सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें जुल्फ़िकार मस्जिद को निशाना बनाते हुए नुकसान पहुँचाया गया। इसके अलावा इस इलाके में मकान, मोटरसाइकिल और दीगर अशिया को नजर आतिश किया गया। संगवारी में 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिनमें एक की हालत नाजुक बताई गई है। संगवारी में पुलिस को निशाना बनाया गया और हालात को देखते हुए दीगर मुकामात की पुलिस को भारी तादाद में तलब करते हुए तैनात किया जा रहा है। बताया जाता है कि दोनों तबकों के बच्चों के दरमियान मोटरसाइकिलों के तसादुम का मामूली वाक़या पेश आया था और इस मामूली वाक़े को लेकर शरपसंदों ने फ़िरक़ेवाराना रंग दे दिया। तशद्दुद बर्पा करते हुए मुस्लिम इलाके जुल्फ़िकार और जुल्फ़िकार मस्जिद पर शदीद संगवारी की गई, जिसमें 6 अफराद जख्मी हो गए। इनमें एक सहाफ़ी और एक सब इंस्पेक्टर गौस भी शामिल हैं। रियासती वज़ीर बल्दी नज़वनस KT रामाराव ने रियासत के तमाम सहाफ़ियों के लिए मकानों की अराज़ी की फराहमी का वादा किया और सहाफ़ियों के अरकान ख़ानदान के लिए नई पॉलिसी के साथ बेहतर हेल्थ केयर सहूलतों की फराहमी पर जोर दिया है। जलाविहार नेक रिसोर्ट पर सहाफ़ियों के इज्तिमा से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि रियासती हुकूमत रियासत के मुतवफ़ी सहाफ़ियों के बच्चों की तालीमी ज़रूरतों को पूरा करने की ख्वाह है। उन्होंने कहा कि अगर इनकी माएँ मंजूरी दें तो रियासती हुकूमत इनके बच्चों को रिहायशी स्कूल में दाखिल करके इनकी तालीमी ज़रूरतों को पूरा करेगी। इस मौके पर उन्होंने रियासत के 11 सहाफ़ियों के अरकान ख़ानदान को फ़ीकस 1 लाख रुपए का चेक माली इमदाद के तौर पर पेश किया, जिनकी मौत वाक़ हुई है। तेलंगाना स्टेट मीडिया अकेडमी की जानिब से इसका इनेकाद अमल में लाया गया।
वज़ीर दाखिला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी को रोकने की ताकत सिर्फ टीआरएस के पास है और रिवायती गंगा जमनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बरकरारी के लिए कौंसिल इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी ज़रूरी है। ग्रेजुएट राय दहिंदों के नाम अपने बयान में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि बीजेपी तेलंगाना में कदम जमाने की कोशिश कर रही है ताकि दीगर रियासतों की तरह पुरअमन माहौल को ख़राब करते हुए फ़िरक़ेवाराना सियासत पर अमल किया जाए। गैर मिजाज तामीरात और बगैर इजाज़त की जाने वाली तामीरात के खिलाफ मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद की जानिब से अब तेज़ रफ्तार कार्रवाई का सिलसिला शुरू किया जाएगा और आइंदा चंद दिन के दौरान रियासती हुकूमत की जानिब से मंजूरी के साथ GHMC के हुदूद में मौजूद तमाम जोन्स में अलग-अलग टास्क फोर्स तश्कील दी जाएगी जो कि गैर मिजाज और बगैर इजाज़त की गई तामीरात को फौरी तौर पर मुनहदिम करने के इख्तियार की हामिल होगी। ज़राए के मुताबिक कमिश्नर GHMC की निगरानी में आला ओहदेदारों की जानिब से हर जोन के लिए अलग टास्क फोर्स की तश्कील अमल में लाई जाएगी। अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा ने मुसलमानों के दाखिली और बिलखुसूस आइली मसाइल की यकसुई के लिए मोहल्लेवारी सतह पर कमेटियों के क़याम की तजवीज़ पेश की ताकि समाज में जोड़े और जहेज़ की लानत के अलावा खुदकशी के वाक़ात को रोका जा सके। मौलाना जाफर पाशा ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि समाज में जोड़े और जहेज़ की लानत के नतीजे में ख़वातीन की खुदकशी के वाक़ात पेश आ रहे हैं। इसके अलावा ख़वातीन को हरासानी का सामना है। उन्होंने कहा कि इस लानत के सबब गरीब घरानों की लड़कियां शादी से महरूम हो गई हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज में आइली इख्तलाफात की यकसुई मुकामी सतह पर होनी चाहिए। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के पोते फरहान अली महमूद के खिलाफ जो मुफ़क्कम जा इंजीनियरिंग कॉलेज के तालिब इल्म बताए गए हैं, पंजागुट्टा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। इन पर कॉलेज के 2 तलबा के साथ रैगिंग का इल्ज़ाम है। 2 तलबा ने फरहान अली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है जिसमें इल्ज़ाम आयद किया गया है कि अली अपने दीगर 10 साथियों के साथ रोज़ाना इनकी रैगिंग, छेड़छाड़ करने और हरासा करने का इल्ज़ाम लगाया है। तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले में कोरोना पॉजिटिव केसेस में अचानक इजाफे से अवाम में खौफ व हरास की लहर फैल गई है। गुज़िश्ता रोज़ ज़िला आदिलाबाद में कोरोना के 25 केसेस सामने आने की इत्तला है। जिन अफराद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है इनमें रिम्स के तलबा भी शामिल हैं। ताहम ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कोरोना केसेस की तादाद सिर्फ 6 बताई गई है।